Hello everyone, let's start with SOAP Olympiad 2023-24 maths questions from set A for class 7. Let's solve all the logical reasoning section questions in this particular video. And if you want to keep watching and learning with me, then please do like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. So let's start with the first question. The first question says, in the given Venn diagram, rectangle represents children. Okay, so this rectangle represents all the children going to school. So 21 plus 12 plus this 15 plus this 10. They are all the children who are going to school. Circle represents children living in a village. So circle represents all the children who are living in village. 10, 11, 25. I mean, we have to add all these numbers. 15 to get total number of children who live in village. Okay. And triangle represents children who like sports. So within triangle we can see numbers 18, 11, 10 and 12. So if we add them up, we will get all the children who like sports. Which of the following numbers represents children who live in village and go to school but do not like sports? So those children who do not like sports will not be inside this triangle for sure. So and who live in a village will be definitely inside this circle. So we have to exclude all these numbers 10, 11 and 10 which are within this triangle and inside also this circle, because circle represents all the children who live in a village. So I'll exclude 10 and 11 which belongs to the triangle numbers also. So 25 and 15, for now we will consider 25 plus 15 as those children who live in a village. And we have to also see they go to school, okay, but do not like sports. So who those children will be? Definitely this 15, because this 15 number comes within the rectangle. Means these are the children who live in a village and also go to a school but do not like sports. Alright, so these 25 children, they are outside. Means they live in a village but they do not go to school. So the correct answer for this question is option C, which is 15 in number. Alright, so let's solve the next question. Okay, let's solve question number 2. How many such pair of letters are there in the word digital, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabets? तो डिजिटल मैंने लिख लिया है यहाँ पर, और डिजिटल में ए से देखें तो टी तक सारे लेटर्स, मैंने सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स इधर लिख लिए हैं टू कंसिडर द गैप बिटवीन देम. ओके, सो उसके बाद के लेटर्स की जरूरत नहीं. आफ्टर टी वी डोंट नीड, बिकॉज इन डिजिटल वी हैव ओनली 6 लेटर्स विच कम फ्रॉम द लेटर्स बिटवीन इंग्लिश अल्फाबेट्स ए एंड टी. ए एंड टी के बीच में सारे लेटर्स जितने 6 लेटर्स वो आ जाते हैं, राइट. तो उसके बाद के लेटर्स मैंने नहीं लिखे हैं. तो डी एंड आई देखें, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है. डी और आई, ये वाला डी एंड आई भी देख लो, 2 गैप है. तो यहाँ पर देखो डी, इधर इंग्लिश अल्फाबेट्स में डी और आई के बीच इंग्लिश अल्फाबेट्स के सीक्वेंस में 4 लेटर्स आते हैं. यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पे 2 लेटर्स का गैप है, तो ये तो नहीं होगा. वैसे डी और जी देख लेते हैं. डी और जी कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 2 लेटर्स का गैप है डी और जी के बीच, और यहाँ पर 1 लेटर गैप है, तो वो भी नहीं होगा. डी और टी देख लेते हैं. डी एंड टी के बीच सी ऑफ लेटर्स है. आई एम नॉट इवन गोइंग टू काउंट, और यहाँ पर सिर्फ 3 लेटर्स का गैप है डिजिटल में, सो वो भी नहीं होगा. डी और ए के बीच भी हम लोग नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लेटर्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी डी, तो बी सी सिर्फ है. यहाँ पर 4 लेटर्स का गैप है, सो डी और ए भी नहीं होगा. और डी एंड एल भी देखो तो भी नहीं होगा. ओके, नाउ डी का हो गया हमारा खत्म. आई और जी देख लेते हैं. आई जी अगर देखें, जी एच आई, 1 लेटर का गैप है एच का, पर यहाँ पर जी और आई आगे वाले ले लो, पीछे वाला भी ले लो. आई जो पीछे वाला है जी आई ले लो, आई जी ले लो, दोनों केस में नहीं हो रहा है. दैट शुड बी एटलीस्ट 1 लेटर गैप इन डिजिटल इफ यू हैव टू टेक दिस पेयर. सो ये नहीं हुआ. जी और टी देख लेते हैं. जी और टी के बीच सी ऑफ लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पर सिर्फ 1 लेटर का गैप है, सो जी और टी भी नहीं होगा. जी और ए देख लेते हैं. जी और ए अगर ले हम, जी और ए अगर हम ले तो सिर्फ 2 लेटर्स का गैप है यहाँ पर, राइट. और यहाँ पे देखें इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 लेटर्स आते हैं इन बिटवीन, सो ये भी नहीं होगा. सो क्रॉस डालती जा रही हूँ. जी और एल देख लें. जी और एल, देर आर 4 लेटर्स इन बिटवीन, राइट, और बीच में यहाँ पर 3 लेटर्स है, सो जी और एल भी नहीं हो रहा है. क्रॉस इट आउट. अच्छा, आई जी ले लिया, आई आई नहीं देखना है. आई टी देख लेती हूँ. आई और टी के बीच 6 लेटर्स हैं यहाँ पे,
पर यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है इन डिजिटल, सो ये भी नहीं होगा। आई और ए तो डेफिनेटली नहीं होगा। आई एल को देखना है मुझे, आई एल देख लेते हैं। आई और एल देखें तो आई जे के एल, गैप कितने हैं? 2 लेटर्स का गैप। यहाँ पर डिजिटल में कितना गैप है? 2 लेटर्स का गैप। यस, आई एल इज वन सच पेयर जिसमें के लेटर्स बिटवीन देम सेम है, डिजिटल वर्ड में सेम है एज इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इन इंग्लिश अल्फाबेट में भी जे के 2 लेटर्स आते हैं और डिजिटल में भी आई और एल के बीच 2 लेटर्स आते हैं, टी और ए। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, आई मीन दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन, सुइटेबल कॉम्बिनेशन। और फिर उसके बाद आई और एल तो हो गया, टी ए देख लेते हैं। टी ए में बहुत है लेटर्स इन बिटवीन इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये वाले नहीं कंसिडर कर सकते हैं। टी ए भी नहीं है और टी एल डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज अगेन इंग्लिश अल्फाबेट्स में टी एल और टी के बीच काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं। तो और कुछ बच गया है जो हमने नहीं कंसिडर किया है। जस्ट आई जस्ट वांट टू गिव अ फेयर चांस टू अंडरस्टैंड मैंने करेक्टली आंसर किया है नहीं। आई ए हमने देख लिया, आई एल हमने देख लिया, हमने सारे देख लिए हैं, राइट। तो एक ही पेयर निकला है, दैट इज आई एल। ओके, सो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन विल बी द आंसर। दैट इज वन सच पेयर इज देयर इन डिजिटल which has as many letters between it as in the English alphabets. The question is asking which of the following number lies on the face opposite to the face having number 2 when the given net is folded to form a cube. अगर हम इस नेट को फोल्ड करें टू फॉर्म अ क्यूब, इफ यू कैन सी 1 के अपोजिट आएगा एग्जैक्टली देखें तो 6, 1 के अपोजिट आएगा 6, 4 के अपोजिट आएगा 5 और 2 के अपोजिट आएगा डेफिनेटली 3. सो द ऑप्शन इज बी. B is option 3 for this question. Now let's do the next question 4. Find the number of triangles formed in the given figure. So यहाँ पे कितने triangles है वो काउंट करने निकलेंगे. तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये वाला 7 हुआ, तो ये जो बड़ा वाला हुआ, ये जो टोटल ये बड़ा वाला हुआ, दिस इज 9. और ये दूसरा वाला जो ये साइडली बिगर है, ये 10 है. यहाँ पर 2 छोटे छोटे हैं, सो तो ये 11, 12, ये तो 12 से ज़्यादा हो गया. और एक ये इन्वर्टेड एक ट्रायंगल है, ये जो है ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल इधर है ही. ऑलराइट, सो ये 13 है. और भी ट्रायंगल शायद हो, बट मेरे ऑप्शंस मुझे मोर देन 12 जो है ये वाला मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन. सो एज पर द क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फॉर फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया है. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन नंबर 5, राज इज द ब्रदर ऑफ अमन. सो राज इज ब्रदर ऑफ अमन. श्रुति इज द मदर ऑफ अमन. सो मैंने श्रुति को ऊपर लिख लिया, अमन के ऊपर लिख लिया. इस तरह से करना है. राज इज ब्रदर ऑफ अमन, मतलब राज और अमन को साइड बाय साइड लिख दो क्योंकि दोनों सिबलिंग्स है. और आप सिबलिंग लिख दो और बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, नहीं भी ड्रॉ करो तो भी चलेगा. उसके बाद अमन इज द मदर ऑफ श्रुति, सॉरी श्रुति इज द मदर ऑफ अमन. तो एक आरो ऊपर देके श्रुति मदर ऑफ अमन, ये मैंने डिक्लेयर कर लिया. उसके बाद क्या कहा गया है, श्रुति इज द वाइफ ऑफ अमित. तो श्रुति इज मदर ऑफ अमन एंड वाइफ ऑफ अमित. सो अमित और एक नाम जोड़ दिया. दे आर द सेम, या तो सिबलिंग्स होते हैं सेम लेवल पे, या फिर हस्बैंड वाइफ को सेम लेवल पे रखना होता है इन फैमिली ट्री. तो श्रुति और अमित दोनों हस्बैंड वाइफ मैंने एक ही लेवल पे रखा है, राइट. श्रुति वाइफ है, यहाँ पे लिख दिया रिलेशन ऑफ अमित. उसके बाद क्या दिया गया है, इफ सौम्या इज द मदर ऑफ अमित, अगर सौम्या मम्मी है अमित की, देन हाउ इज राज रिलेटेड टू सौम्या. तो ये दोनों तो हो गए इन दोनों के बच्चे, श्रुति और अमित के. तो ये भी एक्चुअली इन दोनों का ही बच्चा है, राइट. अगर राज देखे तो वो भी जो है श्रुति और अमित का ही बच्चा हुआ, क्योंकि राज और अमन दोनों ब्रदर हैं, कजिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो डेफिनेटली ये ब्लड ब्रदर्स हैं. अगर ये दोनों ब्लड ब्रदर्स हैं तो श्रुति और अमित दोनों उसके पेरेंट्स है. और अमित की जो मदर है वो है सौम्या. तो सौम्या की राज इज डेफिनेटली ग्रैंडसन ऑफ सौम्या. सौम्या जो है ग्रैंड मदर है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है, दादी है फॉर राज. सो राज इज ग्रैंडसन. ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन. So question 6 says select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. तो अगर हम इस तरह के ट्रायंगल को अगर ढूंढे तो यहाँ पर वैसा ट्रायंगल और ये इस तरह का एक राइट एंगल है नहीं कहीं पे भी.
सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट वन. ऑप्शन बी देखो तो ये वाली चीज अगर देखें हम, ये पोर्शन, दिस वन, आई जस्ट highlight it. This portion is same as option B. So option B is the correct answer. We need not even waste our time looking at option C and D. Let's solve question number 7. Question number 7 says, select the correct image of the given word if the mirror is placed vertically to the left of the word perform. तो perform के left में मैंने एक mirror बना दिया है और it should be vertical. तो ये मैंने दोनों कंडीशंस फुलफिल करके एक मिरर यहाँ पर खड़ा कर दिया है. नाउ एक मिरर कैसे इमेज को बनाता है? जो इमेज बनता है मिरर में, इट इज ऑलवेज सेड टू बी लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या? राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज द लेफ्ट ऑफ द मिरर इमेज. तो पी में ये जो सेमी सर्कल जैसा है वो कहाँ आएगा? डेफिनेटली ये राइट हैंड साइड में, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, पी में, वर्ड में, अल्फाबेट में, पी में ये राइट हैंड साइड में रहता है ये सेमी सर्कल. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा क्योंकि लेटरल इन्वर्जन होता है. ये जो स्टिक्स है दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट. अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दे विल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इस तरह से कुछ दिखेगा. आर का भी वही हालत होगा. सो इमेज जो परफॉर्म का आएगा वो कुछ इस तरह से. ओ तो लेटरल इन्वर्जन नहीं हो सकता. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. एम एक उनमें से एक वर्ड है जो लेटरली इन्वर्ट नहीं हो सकता. वर्ड तो नहीं, अल्फाबेट है. तो इस सारे ऑप्शंस को देखने पे आई थिंक द वन दैट स्टैंड्स होल्ड्स गुड इज बी ऑप्शन. डी में भी देखो ये आर जो है दिस इज नॉट लैटरली इन्वर्टेड. तो डी नहीं है. लुक केयरफुली थ्रू ऑल द ऑप्शंस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, let's do question number 8. The question is a very typical question that comes in this logical reasoning section. It's about code language. So you have to convert according to the code given in the example. In a certain code language, if detail is coded as EGUCJN, then how will higher be coded in that language? तो देख लेते हैं. D के बाद यहाँ पर डायरेक्ट AB, अगर अल्फाबेटिकली देखें D के बाद डायरेक्ट E आता है. So there is no gap between D and E as such. यहाँ पर E के बाद F आता है, राइट? ABCDEFG. तो यहाँ पर F को गैप देके G लिखा है. फिर क्या होता है? STU अगेन डायरेक्टली आ गया. ये वाला ऑल्टरनेट हो रहा है शायद. यहाँ पर A के बाद B छोड़ के C लिखा है. सो ये ऑल्टरनेट हो रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लिख देता है, सक्सेसिव लेटर लिख रहे हैं कोड लैंग्वेज में. और नेक्स्ट लेटर में क्या कर रहे हैं? एक गैप दे रहे हैं, एक लेटर गैप देके नेक्स्ट लेटर जो है वो लिख रहे हैं. तो I के बाद डायरेक्ट J आता है अल्फाबेटिकली. तो दिस इज करेक्ट. L के बाद अगेन M को गैप देकर N कर दिया है, दे दिया है. सो वैसे ही हमें भी करना है. I को डायरेक्टली फर्स्ट लेटर जो है डायरेक्ट आ जाएगा. सो इट विल बी आफ्टर H डायरेक्टली I. यहाँ पर क्या होगा? एक लेटर गैप देंगे J और ये होगा K. सो ये I के देखे तो किसी और ऑप्शन में नहीं है सिवाय A के. सो ऑप्शन A इज द आंसर. सो यू कैन मूव हेड एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट क्योंकि मैं यह सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आई एम नॉट रियली अपीयरिंग इन एन ओलंपियाड एग्जाम, सो आई विल सॉल्व थ्रू द एंटायर वर्ड. सो G में क्या होगा? G में डायरेक्ट H आ जाएगा. सिमिलरली H के बाद I गैप देंगे, ऑल्टरनेट हो रहा है. सो यहाँ पर एक गैप आएगा I, देन J आएगा. E में अगेन डायरेक्ट आ जाएगा, ABCDEF आ जाएगा. और PQRS के गैप के बाद T आएगा. सो ये आ गया IKHJFT is the coded word for higher. Okay, so let's solve the next question. Question number 9. The given question consists of a set of 3 figures P, Q and R showing the folding of a piece of paper. Figure R shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the option which shows the unfolded form of figure R. So first, when in P is folded, the paper looks like this, okay? Vertical semicircle. Again it's folded like this in Q. तो ऐसे ही एक quarter of a circle रहेगा in this particular Q figure. उसके बाद ऐसे होल बना दिया गया है और ये इधर से कट करके 2 होल्स बना दिया है R में. सो फाइनली वो पेपर दिखेगा कैसे? ऑब्वियसली इट विल लुक लाइक ऑप्शन डी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्ट नहीं होता. यू हैव टू यूज द इमेजिनेशन एंड दैट कम्स मेनली व्हेन वी आर यूज्ड टू डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ. कटिंग पेपर ये सब करते रहते हैं तो ये सब दिमाग इसमें चलता है. Let's do this question number 10, last question from the logical reasoning section. Pooja walks 18 meters towards south and then turn left
and walks 8 meter. She then turns left again and walks 9 meter. Finally, she turns right and walks 4 meter. How far is she now from the starting point? So Pooja walks 18 meter towards south, 18 meter towards south, and then turns left and walks 8 meter. She walks 8 meters after turning left. She then turns left again and walks 9 meter. 9 meter like this. And then finally she turns right and walks 4 meter. So she walks towards her right and walks 4 meter. So how far is she now from the starting point? So starting point मान लो ये है, पहले वो 18 meter जाती है. Then she turns towards the left. Her left will be this side. If she is walking towards south, her left will be this side. So 8 meter इस side आती है. Then she turns towards the left again and moves 9 meter. तो मैंने again left मतलब इस तरह से आएगी. After that, finally she moves towards right 4 meter. So finally, how far she is now from the starting point? तो 8 ये हो गया. उसके बाद 9 she moves in this direction. So starting point से अगर देखें, पहले तो ये 18 meter वो आई थी from the starting point. उसके बाद 8 meter आई. So distance count करेंगे. फिर again opposite direction में, opposite मतलब north direction में she has moved. This is in north direction. This movement of 9 meters is in north direction. तो वो -9 होगा, opposite direction में चली गई, right? -9 मतलब ये finally इस point से अब यहाँ पर है, इस level पे, right? So 18 meter से मुझे -9 निकालना पड़ेगा. So 9 meters from, ऐसे देखें, towards south she is now 9 meters away. And towards east, she is actually 8 plus 4, 12 meters away. So again, plus 4 meters she has walked finally. So 18 minus 9 अगर करूँगी तो 9 plus 8 plus 4. This is the final distance. Means actual distance she has moved away from the starting point. So ये क्या होगा? 9 plus 8 is 17. 17 plus 4 is 21 meters. So answer is 21 meters, which is option C. We will solve the other sections in our next videos.